ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਟਰਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਆ ਖਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ, ਇਹ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ
सिख राज की विथ्या जां वो ओपनली जो अपने स्पीचस दिंदे हुंदे सी दरबार साहब के कोले भी जां जिथे किते भी, तो उन्होंने सिख गुरु साहिबान का निरादर करना शुरू करता अपन स्पीचस के विच। ते अपनियां किताबां दे विच भी उन्होंने गुरु पातशाह प्रति कोई जिहड़ा सत्कार अदब जिहड़ा सी वो नहीं भेंट किया। कहण तो भाव कि एक बीज बीजिया जा रहा सी उस सदी दे विच कि जिहदे करके आपसी भाईचारा जिहड़ा वो टुटिया। तो फिर लाला ठाकुर दास ते बाबा नारायण दास सी, उन्होंने किताब लिखी सी उस समय, तो जिहदा टाइटल ही उन्होंने रखिया सिख हिंदू हन। ये टाइटल के उत्तों ही इस दे उत्ते कोई बहुती विचार करन दी जिहड़ी अगी गल नहीं रह जाती कि टाइटल दे विच ही अगला ये दावा कर रहा हैगा आ कि सिख हिंदू हैगे ने। तो जिहड़ा पहला सैंसस हुंदा पंजाब दे विच, उहदे विच भी सिखां नूं हिंदू डिनोमीनेशन दे कैटागरी दे विच रखिया जाता हैगा। बाद विच जदों सिखां नूं पता चलदा ठीक है दूसरे सैंसस दे विच उन्हां नूं वक्खरी जिहड़ी कौम आ उहदी पहचान मिलदी हैगी है। हुण कहण तो भाव की हैगा कि इत्थे जिहड़ा बीज बीजिया जा रहा, तो ये गल्लां अज भी असीं इंटरनेट के उत्ते सुन सकते हैगे आ। ये नहीं कि अज नहीं चल रही हैगियां, ये अज भी चल रही हैगियां ने। ते गुरु पातशाह ने जिहड़े बाणी पढ़ते हैं उन्हां नूं पता होएगा कि गुरबाणी दे विच बहुत सारे शब्द ने जिहदे विच गुरु पातशाह ने इस गल का बखूबी जिहड़ा हैगा आ बख्यान किया कि साडा ना हिंदुआं नाल ना मुसलमानां नाल कोई संबंध नहीं हैगा, ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड परान। ये गुरु अर्जन देव पातशाह का शब्द हैगा जी। इस शब्द दे विच गुरु पातशाह सारा समझाउंदे ने कि ना असीं कोई हिंदुआं की तरह पूजा करते हैं, ना ही असीं मुसलमानां की तरह रमज़ान दे रखते हैं, ना ही उन्हां दे किसी धार्मिक विश्वास नूं असीं अपने जीवन दे विच अडॉप्ट करते हैं। बट जदों इंसान किसी जिद दे विच होए कि मैं साबित करना ही करना हैगा आ, फिर उदों इंसान किसी पासे नूं भी जा सकता हैगा। पर ये सारियां चीज़ां दा नाल वापरिया कि जिहड़ा आपसी भाईचारा सी वो टुटना शुरू हो गया। इस जिद दे विच कि असीं दसांगे गुरु नानक पातशाह की विचारधारा की हैगी आ, सिख गुरु साहिबान ने इस धरती नूं की दिता हैगा। तो खुले आम ये गल्लां करदे हुंदे सी कि गुरु नानक पातशाह ने कदें भी किसी नवें धर्म की नहीं रखी, अपनियां राइटिंग्स दे विच भी ते अपनियां जिहड़ियां स्पीचेस हुंदियां सी उहदे विच भी। तो गुरु पातशाह का जिहड़ा जन्म हैगा वो हिंदू परिवार दे विच होया सी। इस करके जिहड़े सिख ने ये हिंदू ने ये गल्लां अज भी कीतियां जांदियां हैगियां, ये नहीं कि अज गल्लां बंद हो गईयां, पर उस समय इहदा हजे बीज जिहड़ा सी बीजिया जा रहा सी। ये गल्लां होणीआं शुरू होईयां सन उस समय दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि गुरु नानक पातशाह का जन्म हिंदू परिवार दे विच होया, पर जिस धर्म का जन्म गुरु नानक पातशाह के घर दे विच होया वो ना हिंदू सी ना मुसलमान सी। गुरु पातशाह का बचन भी हैगा, सतगुर के जन्मे गवन मटाया, कि मैं उस अकाल पुरख के घर दे विच जन्म लिया। गुरु पातशाह दे जिहड़ी सुरत आ शब्द सुरत का सुमेल आ वो ना किसी हिंदू के घर दे विच जम्मिया ते ना किसी मुसलमान के घर दे विच। तो उन्होंने वालों ये टारगेट किया जाता सी कि गुरु बाबे नानक पातशाह का जिहड़ा जन्म है हिंदू परिवार दे विच होया, तो उन्होंने कदे भी किसी नवे धर्म की नहीं रखी। तो ये गल्लां अज भी चलदियां ने, नहीं कि अज बंद हो गईयां। तो फिर साडे जिहड़े सिख ग्रंथ हैगे ने, साडियां जिहड़ियां साखी साहित हैगा आ, गुरबिलास हैगे ने, जां होर जिन्ने भी साडे इतिहासिक जां पुराने ग्रंथ हैगे ने, उन्हां दे विच कुछ कुछ गल्लां इस तरह दीयां हैगियां साध संगत जी ਜਿਹੜੀਆਂ इतिहास ਜਾਂ गुरमत की कसवट्टी ते पूरियां नहीं उतरदियां। तो ये की करते होंदे सी, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों का पता सी, उन्होंने पढ़ के सिर्फ उन्होंने साखियां उन्होंने घटनावां ही उन्होंने हाईलाइट किया जिहदे विचों वो अपने हाइपोथीसिस नूं ये साबित कर सकन कि गुरु नानक पातशाह जां जिहड़े दूसरे गुरु साहिबान सी वो हिंदू हैगे सी। ते उन्होंने अपने जीवन दे विच जिहड़े ब्राह्मणी कर्मकांड ने वो कीते। उदाहरण के तौर पर गुरु नानक पातशाह ने अपने पिता का जिहड़ा श्राद्ध सी वो मनाया। गुरु अमरदास पातशाह के बारे वो ये गल कहते होंदे सी कि गुरु पातशाह ने अपने जिहड़ा जीवन की उन्हां दी अंतिम क्रिया सी ज्योति जोत समाउण तो बाद उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार करन दा जिहड़ा सी वो दावा किया सी। गुरबाणी की जिहड़ी पंक्ति भी वो लाउंदे हुंदे सन, केसो गोपाल पंडित सदियो हर कथा पढ़े पुराण जियो। सो ये सारियां जिहड़ियां गल्लां सी उस समय कीतियां जा रहीआं सी। तो यदा यह नहीं कि सिख नोटिस नहीं सी लै रहे, उसके बारे असीं जिहड़ा अपना अगला विचार होएगा उहदे विच गल करांगे। तो खालसा के बारे कि गुरु पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसा साजन तो पहला देवी की पूजा की सी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह देवी पूजक सन।
इस तरह का बहुत सारा जिहड़ा उस समय ये गल्लां शुरू कीतियां गईयां ते इहदे नाल फायदा की होया, फायदा तो की होना सी, जिहड़ा आपसी भाईचारा सी वो वंडिया गया। तो इस नफरत की नींह साध संगत जी इन्नी दर्दनाक हैगी आ कि इन्हां दे करके ही ये नहीं कि कल्ला सिखां नूं टारगेट किया जा रहा। हिंदू मुस्लिम सिख जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह के समय दे विच आपस दे विच बड़े प्यार नाल रहिंदे सन, उन्हां दे मन दे विच इन्नी नफरत ईर्खा वधी कि इहदा जिहड़ा नतीजा ये निकलिया कि हिंदुस्तान दे विच एक लीक खिंची गई जिहदे विचों पाकिस्तान का जन्म हुंदा है। वंड का वो बंटवारे का जिहड़ा दर्द हैगा आ, जिन्हां ने हंडाया होएगा वो अज भी महसूस करते हैं। उन्होंने कदे भी 1947 जिहड़ा हैगा वो आज़ादी का दिन नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ गवाया सी उस समय। तो वो जिहड़ी सारी बीज आ वो इस समय दे विच पाया जा रहा। हुण दूसरे पासे अंग्रेज की कर रहे हैं, एक पासे तो ये सारियां जिहड़े उस समय समाज उत्पन्न होए ने उन्हां दे द्वारा ये सारा कुछ प्रोपोगंडा किया जा रहा, तो दूसरे पासे अंग्रेज़ां ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा है की हैगी। इसनूं जानन दे लई डॉक्टर अर्नस्ट ट्रंप का एक जर्मन का स्कॉलर हैगा सी, जिहड़ा लिंग्विस्टिक स्टडीज़ का एक्सपर्ट हैगा सी। भारती जिहड़ियां भाषावां हैगियां उहदे विच उहदी अप्रोच हैगी सी। उन्होंने अपॉइंट किया कि तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अंग्रेजी दे विच व्याख्या करो, अनुवाद करो, सानू पता तो लग सके कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा दे विच है कि। तो फिर उसने जिहड़ी अपनी किताब सी वो लिखी सी द आदि ग्रंथ, उहदे विच द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। ये उसने व्याख्या का जिहड़ा कार्य सी ये पूरा नहीं सी कीता, 6-7 साल उन्हें लाए तो बाद में इसनूं छड्ड गया। तो जो कुछ उसने लिखिया अपनी इस किताब की प्रीफेस के विच, इंट्रोडक्शन के विच, वो बड़ा दिल दिखाने वाला हैगा सी। क्योंकि जदों स्टडी कर रहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, तो वो मन के विच जिहड़ा अपने धर्म, क्योंकि वो बैकग्राउंड हैगी क्रिश्चन मिशनरीज़ की, वो क्रिश्चैनिटी के परसपैक्टिव तो गुरु ग्रंथ साहिब नूं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता। तो इस तरह के रिमार्क्स दिंदा अपनी इस किताब दे विच कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कोई सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ नहीं हैगा, कोई सिस्टमैटिक कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा हैगा आ वो नहीं दिता गया। थीमैटिकल स्टडी करना चाहुंदा सी, ते उहदा कारण की हैगा, जिवें जिन्हां ने बाइबल पढ़ी होएगी, जो बाइबल का जिहड़ा फस्ट चैप्टर हैगा जैनेसिस दे विच, वो एक थीम नूं लैके उन्हां दी गल चलदी आ कि परमात्मा ने 6 दिनां दे विच धरती नूं साजिया, पहले दिन आ बनाया, दूसरे दिन आ बनाया, तीसरे दिन आ कुछ पैदा किया, तो 7वें दिन जाके परमात्मा ने आराम किया सी। एक थीम नूं लैके बाइबल की जिहड़ी हैगी, जिवें उन्हां दे विच 10 कमांडमेंट्स आउंदियां हैगियां ने। हुण उस लैंजिस दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब नूं स्टडी करने की कोशिश करता हैगा। तो फिर उन्हें एक बड़ा दिल दिखाने वाला रिमार्क्स दिता सी कि देयर इज़ नो नीड फॉर कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब बिकॉज इट्स ए रैपीटिशन, कि ये दोहरा होया हैगा, एक गल नूं बार बार किया गया आ, तो इसलिए कंप्लीट ट्रांसलेशन की जिहड़ी हैगी लोड़ नहीं हैगी। बाद विच प्रोफैसर पूरन सिंह ने इस गल का जवाब दिता सी कि जदों बंदा प्यार दे नाल, शरधा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ेगा ना, वो एक पंक्ति नूं हज़ारां वार भी गायन करेगा। तो उन्हां दा आंसर सी कि लव कैन फेस रैपीटिशन बट नॉलेज कैन नॉट, कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं जदों पढ़ना हैगा उदों प्यार नाल पढ़ना। साध संगत एक बहुत वड्डी गल हैगी आ कि जदों भी किसी धर्म की स्टडी कोई करेगा, स्टडी सिर्फ इस करके नहीं की जाती कि किताबां दे विच की लिखिया हैगा, विचारधारा दे विच की लिखिया हैगा। हुण आपां सारे इत्थे दरबार हाल दे विच बैठे हैं, जदों गुरु घर दे कीर्तनीए शब्द गायन कर रहे सी, तो किसी के मन दे विच उस शब्द का की प्रभाव प्यारिया सी, ये कोई भी स्कॉलर जिहड़ा हैगा आ किसी भी किताब चों नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एक सारिਆਂ ਦਾ साडा एक अपना अनुभव हैगा, साडा एक्सपीरियंस हैगा आ, साडा बाणी दे नाल जिहड़ा प्रेम हैगा। तो किसी भी राइटिंग दे विच ये नहीं आऊगा, क्योंकि जिहड़ा राइटर हैगा आ उन्हें सिर्फ बुक्स नूं कंसल्ट करना हुंदा है जां धर्म दे ग्रंथ नूं पढ़ना हुंदा। तो जिहड़ी सब तो वड्डी इसने विद्वान ने जिहड़ा कार्य करदा सी कि इसने इन्नी ज़्यादा बेअदबी की कि जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की ट्रांसलेशन कर रहा सी तो समोकिंग भी नाल कर लैंदा हुंदा सी। जदों सिखां नूं इसके बारे पता चलिया, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। फिर इसकी जिहड़ा जो भी इसने काम किया, यानी कि कल्ला सिखां ने उसनूं क्रिटिसाइज़ किया कि जिहड़े वैसटर्न स्कॉलर सी उन्होंने भी कहा कि इसने बहुत बायस अप्रोच के नाल जिहड़ी हैगी आ वो सिख स्टडी की हैगी है। तो इस तो बाद फिर जिहड़ा मैक्स ऑर्थर मैकॉलिफ सी,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਿਫ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨਸਟ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਹੈਗਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨਸਟ ਟਰੰਪ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਿਫ ਹੈਗਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟਬਨ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏ ਈਜ਼ੀਲੀ PDF ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, DAV ਸਕੂਲ, DAV ਕਾਲਜ, DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਿਆਨੰਦ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਰੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਨੂੰ
कोई अधूरा ज्ञान सी। उन्होंने सगों होर बाल्दी के उत्ते तेल पाया तो ये की हैगा दोनों कम्यूनिटीज़ के विच जिहड़ी हैगी आ वो विथ बहुत ज़्यादा वध जाती हैगी है। तो ये सब तो वड्डी जिहड़ी घटना हैगी कि आर्या समाजियां ने उस समय एक शुद्धि मूवमेंट नां दी प्रथा चलाई हुंदी सी कि हिंदू धर्म का एक असूल हैगा कि जे कोई हिंदू धर्म छड्ड के दूसरे पासे चला जाता तो वह दोबारा हिंदू धर्म दे विच नहीं आ सकता। पर आर्या समाजियां ने जिहड़ी शुद्धि मूवमेंट हैगी आ कि वह शुद्धिकरण हो सकता, उसनूं दोबारा पवित्र किया जा सकता है, तो दोबारा हिंदू धर्म दे विच भी आ सकता हैगा। इन्हां चीज़ां दे नाल जदों देखदे आ तो उस समय की हुंदा कि कुछ सिखां नूं यह हिंदू धर्म दे विच लैके आउंदे ने, उन्हां दे केस कतल किए जाते हैं। बच्छोवाली नां दा एक मंदिर हैगा सी, उत्थे केस कतल करके मंदिर दीयां जिहड़ियां पौड़ियां सी उहदे विच सुੱਟੇ जाते हैं। बहुत वड्डे लैवल ते जिहड़ी हैगी सी बेदबी हुंदी हैगी। ते बहुत सारे आर्या समाजिस्ट ने भी ये नहीं कि उन्हां सारियां ने बड़े खुश होए इस गल दे उत्तों। नफरत फैलाउण वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ भी हैगे सी ते ਜਿਹੜੇ नफरत ਨੂੰ खत्म करना चाहुंदे सी ਉਹ भी हैगे सी। बहुत सारे आर्या समाजियां ने अथरू भी वहाए इस गल दे उत्ते कि तुसीं जो अज कारा किता हैगा ये साडे दिलां नूं दुखी करन वाला, साडे हिरदे जिहड़े ने वलुंदरे गए ने, जो भी किता है बहुत माड़ा होया। पर उन्हां दी गिनती जिहड़ी सी बहुत घट हैगी सी, नफरत फैलाउण वाले ज़्यादा सी। उस अगले दिन फिर गुरुद्वारा जिथे गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश होंदा हैगा आ चूना मंडी लाहौर दे विच, उत्थे सिखां दी एक मीटिंग हुंदी आ। इस घटना दे बारे सारा कुछ हैगा जिहड़ा डिस्कस किया जाता कि आउण वाले समय दे विच हुण की किया जाए। तो इस तरीके दे नाल साध संगत है जिहड़ा जो असी पीरीयड पढ़ते हैगे आ तो मन नूं बड़ा दुख लगता हैगा कि इंसान जिस जिद दे विच पै जांदा ना कि मैं अपनी गल नूं साबित करना ही करना आ, तो जिदां दे विच हमेशा नुकसान ही हुंदा आ, हमेशा बंदे दे बंटवारे ही हुंदे आ ते बंटवारे हो के रहे। फिर इस तो जिहड़ा अगला कदम सी कि पंजाब दे विच अज तक 19वीं सदी की मैं गल कर रहा, उदों तक कदे भी भाषावां दे बेस के उत्ते लोग नहीं सी वंडे गए। अज तुसीं एक आम गल्लां सुनियां होणगीਆਂ कि पंजाब दे बहुत सारे स्कूलों दे विच ये गल का जिक्र मिलता कि जे स्कूल दे विच बच्चे पंजाबी बोलणगे तो उन्हां नूं फाइन कर दिता जाता हैगा। गुरमुखी पंजाबी बोलण दे उत्ते भी स्कूलों दे विच पाबंदी लगाई जाती आ। तो इस पाबंदी का भी इस गल का भी जिहड़ा नहीं हैगी आ ये उस समय दे विच रखी जाती है, तो यह भी आर्या समाजियां द्वारा रखी गई। महाराजा रणजीत सिंह के समय दे विच जिहड़ी दरबार की कोर्ट लैंगुएज हैगी वो फारसी हैगी, पर्शियन हैगी, गुरमुखी नहीं सी हैगी। पर सिखां ने कदे भी विरोध नहीं किया कि गुरमुखी होनी चाहिए आ। आपसी सहहोंद, आपसी भाईचारा जिहड़ा बरकरार सी उस समय दे विच। पर इस समय की हैगा भाषा के नाम के उत्ते वंडिया जाता, गुरमुखी नूं सिखां दे नाल जोड़िया जाता, हिंदी नूं हिंदुआं दे नाल जोड़िया जाता हैगा, ते उर्दू नूं जिहड़ा हैगा वो मुसलमानां दे नाल जोड़ दिता जाता हैगा। कि जदों कि जिहड़ी पंजाबी हैगी आ वो पूरे पंजाब की सांझी भाषा सी, ये कदे भी किसी धर्म की भाषा नहीं सी हैगी। इहदे विच बाबा शेख फरीद ने भी, जिन्हां दा सूफी दरवेश ने इस्लाम दे नाल संबंध सी, उन्होंने भी जिहड़ी अपनी बाणी आ ठेठ पंजाबी दे विच मुल्तानी दे विच रची हैगी सी। ये डायलैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, माझा मालवा दुआबा इन्हां दे जिहड़े हैगे ने वो डायलैक्ट तो डिफरेंट ने पर बोली सांझी हैगी सी। इस समय बोली के आधार के उत्ते, भाषा के आधार के उत्ते भी वंडिया जाता हैगा। थोड़ा चिर पहला एक ना इंटरव्यू आई सी, जवेद अख्तर हैगे आ, पॉलिटिशियन भी हैगे आ, तो उस तो पहला बॉलीवुड दे विच उन्होंने बहुत सारिया फिल्मां जिहड़ियां हैगियां वो भी लिखियां हैगियां, ते थिंकर भी बड़े वड्डे आ। तो अपनी इंटरव्यू दे रहे सी, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू दे विच एक जिक्र किया कि थोड़े दिन पहला कहते एक न्यूज़ एंकर की कह रहा सी कि जिहड़े कोई मुसलमान टैररिस्ट फड़े गए, कहते 3-4 टैररिस्ट फड़ ले गए, उन्होंने कोल AK-47, 3 AK-47 ते 4 उर्दू दीयां किताबां फड़ियां गई। कहते हुण वो लैंगुएज नूं उर्दू नूं भी टारगेट कर रहे हैगे ने कि जिवें AK-47 डेंजरस हैगी है ना, इस तरह जिहड़ी लैंगुएज है वो भी डेंजरस हैगी। तो वह सारा जिहड़ी नींह हैगी साध संगत जी वो इस समय दे विच रखी जाती हैगी आ। उस समय जिहड़ी ट्रिब्यून न्यूज़पेपर निकलदा हुंदा सी 1911 दे विच, उहदा एडिटोरीअल भी छपिया हैगा आ, जिहदे विच इस गल का निखेध किया जाता कि पंजाब नूं कदे भी लैंगुएज बेस ना वंडिया जाए। पंजाबी जिहड़ी हैगी आ इस खित्ते की सांझी भाषा हैगी आ, पर यह गल खत्म नहीं हुई है। गल किसी न किसी रूप दे विच अज भी चल रही हैगी आ। लोग अपनी बोली तो भी टुटे इस समय दे करके। तो उस समय जिहड़े, क्योंकि ये जिहड़ी
ट्रिब्यून न्यूज़पेपर हैगी है ब्रह्मो समाजियों द्वारा जिहड़ी सी वो कढ़ी जाती हुंदी सी ते उन्होंने इस गल का जिक्र भी किया कि ये बहुत खतरनाक साबित होएगी, लोगों को वंडेगी, इन्हां दे विच जिहड़ा आपसी प्रेम सद्भावना हैगी आ ये खत्म होएगी। हुण इस तो जिहड़ा अगला कारज हैगा सी कि जदों टारगेट करते हैं कि सिखां दे बहुत सारे रीति रिवाज हैगे ने जिहड़े इन्हां दे ते हिंदुआं दे सांझे हैगे ने, फिर उस समय जिहड़े नाभा दे महाराजा सी महाराजा रिपू दमन सिंह जी उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट का जिहड़ा हैगा सी 1908 दे विच वो प्रस्ताव रखिया कि सिखां नूं उन्हां दा एक सैपरेट मैरिज एक्ट चाहिदा हैगा आ। जे ये मैरिज एक्ट ना होए तो बार बार टारगेट करते हैं कि तुसीं हिंदू हो, तुसीं हिंदू हो। तो 1909 दे विच जिहड़ा ये आनंद मैरिज एक्ट हैगा ये ब्रिटिश द्वारा पास कर दिता जाता, पर वो इस साल दे विच बहुत सारे जिहड़े मंडल ने आर्या समाजी ने ब्रह्मो समाजी ने उन्होंने बहुत सारिया लैटर्स लिखियां, रेजूलेशन पास किए कि ये जिहड़ा एक्ट हैगा आ ये कदे भी पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिख कदे भी एक वक्री कौम नहीं हैगे। इस तरह का जिहड़ा सारा घटनाक्रम सी उस समय चल रहा सी। ते जिहड़ी सब तो वड्डी गल हैगी दरबार साहब की रहत मर्यादा की, कि दरबार साहब दीयां प्रकरमां दे विच भी इस तरह का बहुत कुछ हो रहा सी जिहड़ा गुरमत के विरुद्ध सी। तुसीं तस्वीर देखना साध संगत उस समय की एक पेंटिंग हैगी आ। इस पेंटिंग दे विच प्रकरमां दे विच तुसीं देखना कि ज्योतिषी बैठ के हत्थ वेख रहे हैगे ने, उत्थे बहुत सारे जिहड़े स्टैचू हैगे ने, बुत पूजा जिहड़ी हैगी आ वो कीती जांदी सी, ते शिवलिंग तक की पूजा जिहड़ी हुंदी सी वो भी दरबार साहब दीयां प्रकरमां दे विच कीती जांदी हुंदी सी। ते 1905 दे विच उस समय सरदार अरूड़ सिंह जी एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे ने, क्योंकि जदों 1919 का जलियांवाले बाग का साका वापरता हैगा ते जरनल जिहड़ा डायर हैगा सी उसनूं सिरों पाओ भेंट किया सी सरदार अरूड़ सिंह ने। उस समय ये दरबार साहब के सरबराह सन, 1905 दे विच मैनेजर सन, ते इन्हां ने जो कुछ भी गुरमत के विरुद्ध हो रहा सी उस सारे नूं खत्म करके सारा कुछ जिहड़ा हैगा ये बुत परस्ती जां जिहड़े उत्थे बैठ के ज्योतिषी हत्थ वेखदे हुंदे सन उन्हां नूं हटा दिता। तो यदा बहुत वड्डा विरोध हुंदा जदों ये गल हुंदी आ। उस समय जिहड़ा मैनेजर सी उसकी जिहड़ी तुलना हैगी वो औरंगजेब दे नाल कीती जांदी आ, कि जिवें औरंगजेब बादशाह कट्टड़वादी हो गया सी, वो सारा कुछ खत्म करना चाहुंदा सी, इस तरह जिहड़ा ये मैनेजर हैगा ये खत्म करना चाहुंदा हैगा आ। तो एक पटीशन साइन की गई तकरीबन 13,000 लोगों द्वारा, जिहदे विच कई सिख भी हैगे सन। हजे सिखां दे मन दे विच भी बड़ियां दे विच कन्फ्यूजन सी। वो पटीशन साइन करके जिहड़ा हैगा फिर केस दायर किया जाता हैगा, पर जिहड़ा मैनेजर का स्टैंड सी वो बड़ा सख्त सी। अगले दिन फिर ये आउंदे ने सारे अपने स्टैचू लैके उत्थे, बट उदों जिहड़ा स्टैंड बिल्कुल सख्ती नाल लिया जाता तो सब कुछ जिहड़ा हैगा सी वो रिमूव कर दिता जाता हैगा। सो इस तरीके दे नाल जदों अज असीं कई वारी जदों सिख इतिहास नूं पढ़दे हां, श्रोमणी कमेटी के इतिहास नूं पढ़दे हां, तो असीं ज़्यादातर टारगेट करते हुंदे जिहड़ा उन्हां दा अज पोलीटिकल सिस्टम हैगा। पर जदों असीं श्रोमणी कमेटी का, अकाली दल का जां सिंह सभा लहर का इतिहास पढ़ांगे तो बहुत वड्डी देन हैगी आ गुरमत सिद्धांतां नूं, गुरमत रहत मर्यादा नूं एस्टैबलिश करन दे विच, गुरु घरां दे विच। ते साध संगत जो इस समय दे विच वापरिया हैगा आ, उस समय ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ दर्द आ ਜਾਂ ਉਹ विचारधारा ये नहीं कि अज वो खत्म हो चुकी है, अज भी किसी ना किसी रूप दे विच वो चल रही हैगी आ, अज भी किसी ना किसी तरीके नाल टारगेट किया जाता, गल्लां उही हैगियां ने, उन्हां दे रूप बदले ने पर वो चल रही हैगियां ने। हुण इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरु पातशाह ने अपने समय दे विच मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। भाई गुरदास जी का बचन हैगा, सिक्का मारना हुंदा कि जदों कोई नवा राज एस्टैबलिश करदा तो अपने कॉइन जिहड़े हैगे, अपनी करंसी जिहड़ी हैगी आ वो चलाउंदे हैगे ने। भाई गुरदास जी का बचन है कि गुरु नानक पातशाह ने एक नवा सिक्का चलाया, कहण तो भाव एक नवे धर्म की नींह रखी सी। पर अज तक तुसीं देखिया कदी कि सिख किसी दूसरे धर्म नूं डिफाइन कर रहा होए, असीं ये कहिए कि असीं दसांगे मुसलमान कौन हुंदा जां हिंदू कौन हुंदा जां ईसाई कौन हुंदे ने। जदों कोई सानूं दूसरा डिफाइन करन दी कोशिश करेगा, ये नहीं कि कर नहीं सकदा, कर सकदा, पर उस तो करन तो पहलां
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ। ਜੇ ਬਾਇਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨਸਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦਿਓ ਖਿਮਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।